Welcome to the physics class. So today we are going to do the numericals based on the topic electric potential energy we have discussed earlier in the previous lectures. So what is the topic? Numericals based on electric potential energy of charges of our electric dipole, whatever it is given in the statement. So first of all we should know the formula that can be used to solve the numerical based on electric potential energy. Okay, so if we have a system of two charges, so what will be the electric potential energy? So I am writing formula used. First is for electric potential energy of a system of two charges. It means if we have 2-point charges, then what should be the electric potential energy for that system consists of 2-point charges. That is represented by U equals 1 upon 4 pi epsilon naught Q1, Q2 both charges upon R12. R12 is the distance between first charge and second charge. Okay, so this should be the electric potential energy between two charges. Okay, if a system has only two charges. If a system has n charges, electric potential energy of a system of n charges. N charges का अगर system it means the system having n charges. So what will be the electric potential energy for that system? That will be 1 upon 4 pi epsilon naught. Two summations will be there. One is for I equals 1 to n, j equals 1 to n, I is never equal to j, q I q j upon r I j एंड 1/2 और आता है. 1/2 क्यों आएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया टॉपिक में कि पेयर एक ही बार बनेगा. 1 और 2 चार्ज का पेयर एक ही बार बनेगा. 1 2 बना लो चाहे 2 1 बना लो. लेकिन इस तरीके से अगर हम वैल्यू रखेंगे तो दो पेयर बनेंगे. एक बार i की वैल्यू 1, एक तो ये बन जाएगा i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2, और दूसरी बार j की वैल्यू 1 और i की वैल्यू 2. ये भी 1 2 का पेयर बनेगा, ये भी 1 2 का. तो पेयर ये दो बार आ जाएगा पेयर. ये दो बार पेयर ये 2 1 का बन जाएगा, i का ले आएगा. तो ये दो बार आ जाएगा पेयर, और हमें काउंट एक ही बार करना है. कोई दो बार चीज आ रही है उसको काउंट एक बार करना है तो क्या करेंगे, उसका हाफ कर लो. इसलिए पहले ही आगे हाफ लगा देते हैं. सो दिस विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ n चार्जेस. जनरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला है, दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल. फ्रॉम द फॉर्मूला पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज. सो वर्क डन क्या होगा, q इनटू v. वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है. So what will be the potential energy is equal to charge into potential. Next, if we have two charges in a system of external electric field, एक external electric field system में पहले से लगा हुआ है, तो उसमें potential energy अगर आपने निकालनी, electric potential energy of a system of two charges in external electric field. In external electric field. So what will be this? फर्स्ट चार्ज आप लेके आओगे, कल ही की हमने डेरिवेशन इसकी. फर्स्ट चार्ज आप लेके आओगे तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ेगा. दैट विल बी q1v. प्लस जब सेकंड चार्ज लेके आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, और फर्स्ट चार्ज के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा. और फर्स्ट चार्ज के अगेंस्ट हमने पढ़ लिया पीछे. So this will be the formula to solve the numerical based on electric potential energy of a system of two charges in external electric field. इसके बाद हमने ये किया था कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो उसके ऊपर टॉर्क या उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी कि कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी या कितना उसके ऊपर टॉर्क लगेगा. What was the next? Fifth is electric potential energy of electric dipole in external electric field.
So what was this? U is equal to minus PE cos theta 2 minus cos theta 1. थीटा 1 इज इनिशियल एंगल जहाँ पे आपने डायपोल पहले रखा हुआ है, थीटा 2 फाइनली जहाँ पे रोटेट करने के बाद उसको ले जाया जा रहा है. ओके, सो व्हाट आर द न्यूमेरिकल, दीज आर द फॉर्मूलाज to be used for solving the numerical based on electric potential energy. So let us do the some examples. Okay, so look at the statement of first numerical. What is this? The equipotential surface for a point charge means if we have an equipotential surface for a point charge, this is the point charge Q. एक point charge की equipotential surface क्या होता है? Spherical. ड्रॉ किया था हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज. इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल ऑफ 1 नैनोकूलम चार्ज. इट मींस दिस चार्ज इज 1 नैनोकूलम. सो व्हाट इज गिवन टू अस? चार्ज इज 1 नैनोकूलम, हैज पोटेंशियल ऑफ 9 वोल्ट. पोटेंशियल कितना गिवन है? 9 वोल्ट. फाइंड द रेडियस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या कैलकुलेट करनी है? रेडियस. सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इसको बोला हुआ है, इट मींस इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है. इसके पॉइंट पे पोटेंशियल लगा कौन रहा है? सरफेस पे ये चार्ज लगा रहा है. चार्ज इज अ पॉइंट चार्ज. तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r. सो व्हाट इज गिवन टू अस? पोटेंशियल गिवन है हमें, चार्ज गिवन है, हमने क्या कैलकुलेट करना है? r कैलकुलेट करना है. सो r इधर लेके आओ. सो इट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by v. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10 to 9. चार्ज इज 1 नैनोकूलम. नैनोकूलम मींस दैट इज 10 to power 9 minus 9 कूलम. नैनो मींस 10 to power minus 9 कूलम. So next, what is potential given? Potential is 9 volt. So this is 9. 9 to 9 cancel. 10 to 9, 10 to minus 9 cancel. So what will be this? Answer is 1. So answer is 1 meter. So radius of that equipotential surface is 1 meter. Okay. So this was the first numerical based on the formula. So look at the second question. Two charged particles each having a charge 2 microcoulomb. It means what is given to us, that is Q1, Q2 is of 2 microcoulomb. Micro means 10 to power minus 6 coulomb. Are brought from infinity. Infinity से उसको लाए. From infinity to position separated by 10 cm. दो पोजीशन में उनको लेके आए और उन दोनों पोजीशंस का बीच का डिस्टेंस है 10 centimeter. So distance is 10 centimeter. But we have to take it in SI unit. SI unit is meter. So convert it into meter. That is 10 into 10 to power minus 2 meter. So it will become 10 to power minus 1 meter. R. From infinity to position separated 10 centimeter. Calculate increase in potential energy during the process. Potential energy आपने calculate करनी है. So if we have a system of two charges and we want to calculate the potential energy, what is the formula to calculate potential energy of system of two charges? That is 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r12. 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 10 to 9. q1 q2 given आपने को 2 into 10 to power minus 6. 2 into 10 to power minus 6 upon r, दोनों के बीच का डिस्टेंस, that is 10 to power minus 1 meter. So what will be this? 9 to 18, 18 to 36 तो नंबर हो गए. अब 10 की पावर में 9 पॉजिटिव, ये 1 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी. 10 पॉजिटिव और 12 नेगेटिव. सो 2 नेगेटिव बचेगी. 10 to power minus 2. Okay. So this is the potential energy. Dividing it 36 by 100 हो जाएगा ये. 10 to power minus 2 नीचे जाके 10 to power 2. So it will be 0.36 joule. So potential energy of a system of two charges is 0.36 joule. So this is the formula based numerical on 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r. Okay, so this was a numerical based on electric potential energy of a system of 2 point charges. So look at the next question. Next question is 3 charges are arranged at the corners of an equilateral triangle of side l shown in the figure. ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में.
we have an equilateral triangle of side L. Equilateral triangle की तीनों sides equal. There are three charges on the three corners of an equilateral triangle, that is minus q, plus q and plus q. Minus q is at A, plus q is at B and also plus q is at C. Calculate the work done to form this arrangement of charges. इस तरह के अरेंजमेंट बनाने में कितना वर्क डन? इट मीन्स यहाँ केस ये है कि ये तीनों चार्जेस पहले इन्फिनिटी पे पड़े थे, तभी इसको बनाने में अरेंजमेंट कुछ किया गया. पहले तीनों चार्जेस इन्फिनिटी पे पड़े थे, वन बाय वन हम उनको लेके आ रहे हैं. तो हम पहला चार्ज सीरीज वाइज लेके आएंगे. ABC होता है तो पहला A पे, फिर B पे और फिर C पे. तो हम ये देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि W1 क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग माइनस क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू A. माइनस क्यू चार्ज को सबसे पहले हम लेके आए हैं. जब माइनस क्यू को लेके आए तो बाकी ट्रायंगल पे किसी भी कॉर्नर पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, तो सबसे पहला हम चार्ज माइनस क्यू लेके आए. तो इसका मतलब बाकी दोनों चार्जेस कहाँ पे? अभी इन्फिनिटी पे पड़े हैं. वन बाय वन हम लेके आएंगे. ओके, सो व्हाट विल बी द वर्क डन? फर्स्ट को लाने में वर्क डन कितना होगा? 0. क्यों? क्योंकि फर्स्ट को लाने से पहले कोई भी और चार्ज प्रेजेंट नहीं है. उससे पहले चार्ज नहीं होगा तो किसी चार्ज के या पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क डन नहीं होगा. चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल नहीं होगा, और वर्क डन होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज. पोटेंशियल नहीं है तो फर्स्ट को लाने में वर्क डन 0 होगा, क्योंकि यहाँ कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी तो लगा नहीं हुआ. सो फर्स्ट चार्ज को लाने में वर्क डन 0. So what will be next? W2 work done in bringing plus Q from infinity to B. इन्फिनिटी से B तक प्लस Q चार्ज को लाने में वर्क डन W2 हुआ. अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, प्लस Q चार्ज को जब आप लाए उससे पहले माइनस Q चार्ज आ चुका है. सीरीज वाइज ला रहे हैं, पहले A पे, फिर B पे और फिर C पे, तभी ये अरेंजमेंट बनेगी. तो जब आप प्लस Q चार्ज को ला रहे हो, पहले कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? माइनस Q. इट मीन्स माइनस क्यू चार्ज का कुछ पोटेंशियल भी होगा, उस पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा. सो W2 क्या होगा? दैट इज जो चार्ज आप लेके आते हो, दैट इज प्लस क्यू इनटू पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज. जो चार्ज पहले प्रेजेंट है उसका पोटेंशियल, दैट इज V1. V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू प्रेजेंट एट A इनिशियली बिफोर ब्रिंगिंग प्लस क्यू चार्ज एट B. सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल? माइनस क्यू इज अ चार्ज, पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमें पता ही है, तो Q तो एज इट इज रखेंगे अभी प्लस Q. सो पोटेंशियल विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच का, डिस्टेंस है L. यहाँ माइनस क्यू लेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है. तो सेकंड को लाने में वर्क डन कितना होगा? दैट इज Q इनटू Q. Q स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग second charge from infinity to B, in which minus q charge was initially present at A before bringing plus q at B. तो सेकंड को लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वो ये है. जब आप थर्ड को लेके आओगे, इट मींस थर्ड को जब आप लेके आओगे, थर्ड W3 is work done in bringing plus q from infinity to C. इन्फिनिटी से C तक थर्ड चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा? अच्छा, थर्ड चार्ज आप लेके आ रहे हो तो थर्ड चार्ज को से लाने से पहले फर्स्ट A पे भी प्रेजेंट है और B पे भी प्रेजेंट है, तो दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा. सो इट मीन थर्ड चार्ज कितना लाया? Q. और पोटेंशियल दोनों का V1 प्लस V2. V1 इज ड्यू टू VA एंड V2 इज ड्यू टू VB. इसको भी VA ही लिख लेते हैं, सिंबल की वजह से पहचान हो जाएगी. तो पोटेंशियल ड्यू टू A एट C एंड पोटेंशियल ड्यू टू B एट C. सो दोनों का पोटेंशियल हम लेते हैं, Q बाहर है, पोटेंशियल दोनों का फर्स्ट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट VA पे नेगेटिव चार्ज है तो उसका नेगेटिव Q बाय L, दोनों के बीच का डिस्टेंस, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B की वजह से वहां पॉजिटिव चार्ज है और डिस्टेंस दोनों के बीच का L है. दिस इज द नेट पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज A, charge minus q at A and charge plus q at B. So what is this? This is having the equal and opposite value. ये माइनस में है, ये प्लस में उतनी वैल्यू, तो ये सारी कैंसिल हो जाएगी. So it will be 0. तो थर्ड चार्ज को लाने में वर्क डन कितना हो रहा है? 0 हो रहा है. So we have 3 work done now. Total work done will be, that is W1 plus W2 plus W3. W1 और W3 तो 0 है. सो W2 देख लो, जितना W2 है उतना ही आपका वर्क डन होगा.
वर्क डन इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय में l. सो दिस इज द नेट वर्क डन. ओके, अपने से ये पूछा गया था कैलकुलेट द वर्क डन टू फॉर्म दिस अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस. एक और पूछा गया व्हाट नेम कैन यू गिव टू दिस वर्क डन. इस वर्क डन को आप क्या नेम दे सकते हो. एज वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. Work done is stored as electric potential energy. So this work done will be called electric potential energy of a system of three charges placed at three corners of an equilateral triangle. That potential energy is -1/4 pi epsilon naught q square upon l. So this was the third numerical. So look at the next question. Two charges of 2 microcoulomb and -2 microcoulomb. Okay. आर प्लेस्ड है. कोऑर्डिनेट्स अपने को दिए हुए हैं तो ये फिगर बन जाएगा इसका. दिस इज नंबर लाइन, दिस इज 0. सपोज दिस इज 4.5 इन प्लस एंड दिस इज 4.5 इन माइनस. 2 माइक्रोकूलम का चार्ज -4.5 पे पड़ा है. 2 माइक्रोकूलम का मतलब 2 × 10⁻⁶. दिस इज q1. ओके, और ये सेकंड जो चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, that is -2 × 10⁻⁶ कूलम. That is at 4.5 in plus. So there are distances respectively. That is, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, distance is a scalar quantity. R1 is 4.5. This R2 is also 4.5. हम डायरेक्शन ही देखेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे कि ओरिजिन से उसका कितना डिस्टेंस है. चाहे नेगेटिव में है लेकिन है तो 4.5 है. नेगेटिव से ये बता रहा है लेफ्ट साइड में ओरिजिन के, और पॉजिटिव बता रहा है राइट हैंड साइड में. लेकिन तो वैल्यू तो 4.5 ही है दोनों तरफ ओरिजिन से. इन रिस्पेक्टिवली इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दिया हुआ है. सो व्हाट वी आर गिवन विद, फर्स्ट इज q1 इज 2 × 10⁻⁶ कूलम, q2 इज -2 × 10⁻⁶ कूलम, r1 इज 4.5 सेंटीमीटर गिवन था ये, तो मीटर 10⁻² मीटर. r2 is also 4.5 into 10⁻² meter. Okay, but what we require if there are two charges, what is the question? External electric field यहाँ दिया हुआ है. External electric field is 9 × 10⁻⁶. Sorry 6. r की पावर -2 दिया हुआ. r की पावर -2 नीचे जाके क्या हो जाएगा, r की पावर 2 न्यूटन पर कूलम ये दिया हुआ. फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. इट मींस क्वेश्चन क्या बना कि वी हैव टू चार्जेस एंड दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. वी हैव टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला था. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट वाज द फॉर्मूला. फॉर्मूला वाज q1v, ओके, फर्स्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल, प्लस q2v प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r. यहाँ पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज क्या तो इसको r1 लिख लेना, सेकंड चार्ज क्या तो इसको r2 लिख लेना. अब हमारे पास पोटेंशियल तो है ही नहीं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है. लेकिन हमने एक रिलेशन पढ़ी है पीछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दैट वाज E = -dV/dr. यहाँ dV क्या हो जाएगा, -edr. dV क्या हो जाएगा, -edr. हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं. सो मैग्नीट्यूड में नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है. अगर हमने पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो. अगर आपने फर्स्ट की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फर्स्ट के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, और सेकंड चार्ज की वजह से निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेकंड से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो. सो व्हाट विल बी दिस, U = q1. q1 एक बार एज इट रहने दो. V r1 की जगह पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, that is electric field into distance of first charge. Distance of first charge is r1 plus q2 potential due to second charge. Second charge का potential क्या बन जाएगा, electric field into distance of second charge, that is E into r2 plus 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r12. r12 is the distance between two charges, first and second. So putting the values now, q1 is 2 × 10⁻⁶, q2 is -2 × 10⁻⁶. So q1 2 × 10⁻⁶. इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को गिवन है 9 × 10⁻⁶/r². 9 × 10⁻⁶/r². r अगर आप ले रहे हो, अगर फर्स्ट चार्ज की वजह से निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड
तो फर्स्ट चार्ज का डिस्टेंस आएगा, फर्स्ट चार्ज का डिस्टेंस r1 का स्क्वायर इंटू r1 एक है प्लस q2 की वैल्यू दैट इज माइनस हो जाएगी, माइनस है वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, इलेक्ट्रिक फील्ड 9 इंटू 10 टू पावर 6 बाय r2 का स्क्वायर इंटू r2 प्लस 1/4 प्लस 9 इंटू 10 टू 9, दोनों चार्जेस, चार्जेस कितने हैं दोनों ये q1 q2 2 इंटू 2 4। पोटेंशियल जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, हम साइन नहीं लेंगे अब इसमें। पोटेंशियल में नहीं, यहाँ लेना पड़ेगा अपने को, यहाँ पोटेंशियल जी निकाल रहे ना, तो पोटेंशियल जी में भी यहाँ आपको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ ले रहे हो तो यहाँ भी लो, यहाँ नहीं है तो यहाँ भी मत लो, दोनों की। अगर यहाँ लिया आपने तो वहाँ भी ले लो इसमें। तो ये बन जाएगा 2 बार 2 इंटू 2 4 10 टू पावर माइनस 6 10 टू पावर माइनस 12, so it will be minus 4 into 10 to power minus 12 अपॉन r12 का मतलब यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों यूनिट का टोटल डिस्टेंस कितना बना 9 सेंटीमीटर था, तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 to power minus 2 हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व दिस। r1 से एक r1 कैंसिल, r2 से एक r2 कैंसिल, r1 r2 की वैल्यू अपने को पता ही है, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर 10 to power minus 2, r2 भी 4. ओरिजिन से लेना 4.5 into 10 to power minus 2। सो ये वैल्यूज रखेंगे, ऑन सॉल्विंग वी विल गेट अ पोटेंशियल एनर्जी will be minus 0.4, on solving you will get minus 0.4 joule is the potential energy of a system of two charges placed in external electric field। अगर दो चार्जेस आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, उनका पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, दैट इज माइनस 0.4 जूल एज पर गिवन डेटा। ओके, सो दिस इज द फोर्थ न्यूमेरिकल। सो लुक एट हियर द फिफ्थ न्यूमेरिकल, a dipole of dipole moment. It means what is given to us, that is dipole moment symbolically represented by p 10 to the power minus 30 coulomb meter. This is given, is in uniform electric field. So electric field is given, electric field is 6 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. The dipole is aligned along the electric field. It means initially जो dipole है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल पड़ा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, तो डाइपोल भी ऐसे पड़ा, दिस इज डाइपोल, ए बी इज डाइपोल। तो अगर स्टार्टिंग में अगर पैरेलल पड़ा तो इट मींस θ1 स्टार्टिंग एंगल कितना दिया हुआ 0 डिग्री। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल टू कीप इट इन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस जब ये 60 डिग्री पे चला जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब फाइनल एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। पहले अलाइंड अलोंग था, तो अलोंग का मतलब θ1 60 डिग्री, θ2 जितने एंगल पे आपने उसको रखना है, अब उसको रोटेट करके अब ऐसे रख देना, मतलब ये एंगल 60 डिग्री है। यहाँ पे आपने देखना उसकी पोटेंशियल कितनी है, तो रोटेट कराने में वर्कडन हुआ है ना, पहले पैरेलल था, पैरेलल से इसको 60 डिग्री लाने में जितना वर्कडन हुआ, वर्कडन विल बी स्टोर्ड एट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय U इज इक्वल टू माइनस PE cos θ2 minus cos θ1। P is minus 4 into 10 to the power minus 30। Okay, so electric field is 6 into 10 to the power 4, cos θ2 is 60 degree minus cos θ1 is 0 degree। So putting the values of cos 60, ये तो क्या बन गया 6 4 are 24 into 10 to the power minus 26, cos 60 is 1 by 2 minus 0, cos 0 is 1, so it will be minus 1 by 2, ये कितना बना माइनस 1 बाय, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस 24 into 10 to the power minus 26 into minus 1 by 2, minus minus plus, so it will be 12, so 12 into 10 to the power minus 26 joule is the potential energy of the dipole when it is an angle of 60 degree with the electric field। So this was all about the today's session about numerical based on electric potential energy। I will send some unsolved questions to you and you have to solve the question and send the pics to my personal WhatsApp wall। Okay, so thanks and have a nice day।